4, 3, 2, 1। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष 2025 में अपने पहले मिशन के रूप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट लॉन्चिंग का शतक लगा दिया है। इसरो का 100वां लॉन्च मिशन सफल हो गया है। NVS-02 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करने के बाद इसरो की इस उपलब्धि को बड़ा मुकाम करार दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। उन्होंने इसे अविश्वसनीय मील का पत्थर बताया, जो हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की दूरदर्शिता, समर्पण और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि देश अंतरिक्ष अन्वेषण में नई ऊंचाइयां हासिल करना जारी रखेगा। इसरो ने 29 जनवरी की सुबह 6:23 पर अपना 100वां मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV F-15 के जरिए 2250 किलोग्राम की नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को भेजा गया। नेविगेशन उपग्रह NVS-02 नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन यानी कि नाविक श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है। इस श्रृंखला में कुल 5 सैटेलाइट भेजी जानी है। 100वें प्रक्षेपण की सफलता पर पहली प्रतिक्रिया में केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि GSLV F-15 NVS-02 मिशन का प्रक्षेपण न केवल एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर है, बल्कि 100वां प्रक्षेपण है, जो भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। Milestone, the 100th launch from Sriharikota. That makes each one of us, every Indian, proud. We are also proud of the scientific acumen, the capabilities, the capacities of our scientists, our space experts, and at the same time also thankful to the enabling milieu, to the patronage provided by the political leadership headed by Prime Minister Modi. And while we celebrate the 100th launch from Sriharikota, it's important to share with the audience how this has been made possible and how this has happened in rapid strides in the last few years. Our statistics bear out, figures bear out, evidence bears out that there has been a quantum leap since 2014 after Prime Minister Modi came in. And this quantum leap has been both in the terms of the development of the infrastructure and also in the terms of the investment. For example, ISRO was established in the year 1969, the same year when America landed the first human being on the surface of the moon. Sriharikota became operational in 1971. The first launch happened in 1979. But the first launching pad could be established only by 1993. And the second launching pad also in Sriharikota took another more than a decade in 2004, which means that over the last 50 years or so, the progress was not at a pace that could have been expected. But in the last 10 years, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और निवेश दोनों के मामले में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। In addition to the 2 launching pads that already exist in Sriharikota, the work has started on the 3rd launching pad, which is going to be a bigger one to carry the bigger satellites, the heavier ones, and also larger ones in size. And at the same time, another site has also been, in addition to this location of Sriharikota, another location has been identified in Tamil Nadu in district Tuticorin, where again the foundation stone was laid by Prime Minister Modi in February last year, that is 2024. So that is the quantum development in infrastructure. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भागीदारी में तेजी से हो रही वृद्धि पर भी प्रकाश डाला। As far as investment is concerned, ISRO had to wait for nearly 50-60 years working with very minimal resources, as a result of which the abundant acumen, abundant talent, abundant potential of our scientific experts could not find its full realization. But it happened only in the last few years after Prime Minister Modi introduced the new space reforms and opened it up to the public-private participation. Today, not only there is a huge investment from the private sector, and not only the first generation of our startups have turned into globally relevant entrepreneurs,
But there's also a huge generation of revenue happening from the launch of the foreign satellites. Like, for example, if you take the US satellite, so far ISRO has earned almost 172 million US dollars. And if you take the European agency satellites, about 292 million euros have been earned. And all these satellites put together, 90% of them or more than them have been launched only in the last 10 years. As far as the investment from the private participants is concerned, in just a small span of 8 months last year, beginning from April to December, we had an investment of more than 1,000 crore. And if you go by the overall space economy, which was very minimal till about 10 years back, today it is more than 8 billion US dollar. And the rise is so steep and happening at such a pace that if you go by the future projections, our prediction is that in the next 7-8 years, we might rise 5 times more to nearly 44 billion US dollars. And therefore, space economy would emerge or may emerge as an important component of the overall India growth story as we move towards Viksit Bharat 2047, and our economy moves from rank 5 to rank 4, rank 3, and then to that pedestal of century 2047. वहीं इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी अगले 5 वर्षों में 100 मिशन लॉन्च करने के लिए काम करेगी। Let me congratulate the spacecraft team and all the teams, including range, tracking, all the teams for the successful accomplishment what is done today. In the coming days, we look forward to further orbit tracing operation of the satellite and successful deployment in the assigned orbit. GSLV F-15 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया यह नेविगेशन सैटेलाइट परिवहन में उचित ट्रैकिंग और मार्गदर्शन में मदद करेगा। हवाई और समुद्री यातायात को कुशलतापूर्वक ट्रैक करेगा। वहीं सैन्य अभियानों को अंजाम देने के लिए सुरक्षित स्थानीय नेविगेशन होने से रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा। इससे पहले NVS-01 जो दूसरी पीढ़ी का पहला सैटेलाइट था, 29 मई 2023 को GSLV F-12 के जरिए लॉन्च किया गया था, जबकि NVS-02 NVS सीरीज का दूसरा सैटेलाइट है। इसमें L1, L5 और S बैंड में नेविगेशन पेलोड के साथ साथ C बैंड में रेंजिंग पेलोड भी लगाया गया है, जैसा कि इसकी पहली पीढ़ी की सैटेलाइट NVS-01 में था। इसरो का ये उपग्रह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से देश में ही बना है। NVS-02 के जरिए भारत अपने नाविक सिस्टम को मजबूत करेगा। इसे UR सैटेलाइट सेंटर में डिजाइन, विकसित और तैयार किया गया है। नवंबर-दिसंबर 2024 के बीच इस सैटेलाइट की टेस्टिंग की गई, जिसमें इसकी हर परिस्थिति का सामना करने की काबिलियत को परखा गया। इसमें भारत के सटीक समय की जानकारी देने के लिए एक परमाणु घड़ी भी लगाई गई है, जिसे रूबिडियम एटॉमिक फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। जिस नाविक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है, उसके जरिए भारत को कई क्षेत्रों में स्वतंत्र और स्वायत्त बनाने के लिए कोशिश की गई है। मसलन भारत में अभी नक्शों से लेकर मोबाइल कंप्यूटर पर समय तक के लिए लोगों को विदेशी तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत में नक्शे पर किसी भी जगह या किसी चीज की सटीक स्थिति बताने, गति और डिजिटल डिवाइसेज पर सही समय बताने के लिए देश अब तक अमेरिका के ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम तकनीक या रूस के ग्लोनास सिस्टम पर निर्भर है। इतना ही नहीं, दुनिया की अधिकतर महाशक्तियों ने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के क्षेत्र में स्वायत्तता हासिल करने के लिए अपनी खुद की प्रणालियां बना ली हैं। अमेरिका और रूस के अलावा चीन ने अपना बेइडू नेविगेशन सिस्टम स्थापित किया है। इसके अलावा यूरोपीय संघ अपने क्षेत्र में नेविगेशन सेवाओं के लिए गैलीलियो सिस्टम का इस्तेमाल करता है। भारत की ओर से अपना नेविगेशन सिस्टम नाविक बनाने की एक अहम वजह कूटनीतिक स्तर पर स्वतंत्रता और स्वायत्तता हासिल करना है। दरअसल किसी तनाव की स्थिति में विदेशी ताकतें अपने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के इस्तेमाल को दूसरे देशों के लिए बंद कर सकती है।
अंतरिक्ष विज्ञान के नए नए क्षेत्रों में भारत लगातार नए कीर्तिमान बना रहा है। जनवरी 2025 में ही इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तहत सैटेलाइट्स को जोड़ने में सफलता हासिल कर ली है। भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। अंतरिक्ष डॉकिंग 2 तेज गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान को एक ही कक्षा में पास लाने और एक साथ जोड़ने की जटिल प्रक्रिया है। स्पेडेक्स मिशन एक किफायती तकनीक का प्रदर्शन करने वाला मिशन है। भारत से पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे हैं। On 30th December night, 22 hours 15 seconds, our workhorse PSLV lifted off after 13 minutes 13 seconds. It gave a velocity of 28,400 kilometers per hour, and the satellites were injected in the required orbit. Really, during the last 15 days, marvelous, outstanding, excellent, dedicated activities were carried out, and today we have got a historical success of docking. And on this occasion, let me congratulate each and every one of you, your family members, our elders, our mentors, for the great accomplishments. And let us keep going. And really, today we are a proud nation having this technology with us, which is really required for our future missions, including Chandrayaan 4, crewed mission landing on moon, VAS related activities. This is a first stepping stone towards those important activities. इसरो की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और संपूर्ण अंतरिक्ष बिरादरी को बधाई। यह आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतरिक्ष में डॉकिंग एक जटिल काम है। स्पेडेक्स का अर्थ है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेडेक्स मिशन का मकसद अंतरिक्ष यानों को डॉक और अनडॉक करने के लिए जरूरी तकनीक को विकसित करना और प्रदर्शित करना है। इससे पहले 12 जनवरी को इसरो ने डॉकिंग के ट्रायल के दौरान दोनों सैटेलाइट को 3 मीटर से भी कम दूरी पर लाकर वापस सुरक्षित दूरी पर पहुंचा दिया था। 16 जनवरी को स्पेसक्राफ्ट के बीच की दूरी को 15 मीटर से 3 मीटर तक लाया गया। डॉकिंग की शुरुआत सटीकता के साथ की गई, जिससे स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर करने में कामयाबी मिली। डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई। भारत सफल स्पेस डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। Some confirmation based on telemetry as well as with images. Now we have done both of them. Now we can declare that the SpaceX docking has been achieved successfully. Our dream of achieving the docking in space has come true. Kudos to all of you. We have done it. We achieved the docking, the first docking by India. The first time we have achieved the docking, so it's a wonderful experience as far as STAC is concerned. It's a wonderful event in this year 2025 where we achieved this SpaceX mission, which is the first of our country. इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया था। PSLV C-60 रॉकेट की मदद से 2 छोटे सैटेलाइट SDX-01 और SDX-02 को लॉन्च किया गया था। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च कर 475 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया था। इसरो के अनुसार स्पेडेक्स मिशन PSLV द्वारा लॉन्च किए गए 2 छोटे अंतरिक्ष यान का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग के प्रदर्शन के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी मिशन है। अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक तब आवश्यक होती है जब सामान्य मिशन के लिए कई रॉकेट लॉन्च की जरूरत होती है। इस मिशन की कामयाबी पर चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशंस निर्भर थे। यह तकनीक भारत की अंतरिक्ष से जुड़ी महत्वाकांक्षाओं के लिए काफी अहम है। यह डॉकिंग अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी भारत के चंद्रयान 4 मिशन के लिए काफी मददगार साबित होगी। मिशन की सफलता अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना
और संचालन के अलावा चांद पर एस्ट्रोनॉट को भेजने जैसी योजनाओं की राह आसान बनाएगी। यह तकनीक भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं जैसे कि चंद्रमा पर भारत, चंद्रमा से नमूना वापसी, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और संचालन के लिए बेहद जरूरी है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।